की जो कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो हार्ट को खुद को ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाने का काम करती है। उनके अंदर जब प्लाक जमता है तो प्लाक की वजह से यानी अंदर से नसें जो है ना नैरो हो जाती हैं, सुपड़ने लग जाती हैं और उसमें क्लोट जम जाता है। क्लोट जमने की वजह से ब्लड नहीं पहुंच पाता, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और हार्ट काम करना बंद कर देता है और इंसान के चेस्ट में नीडल जैसे पेन होता है और इंसान टप जाता है। और यह हर एज ग्रुप में देखने को मिला है, आए दिन देखने को मिलता है। अभी हम और कुछ वीडियो देखते हैं और उसके बाद में हम पीपीटी के माध्यम से समझेंगे पूरी चीजों को। जस्ट एक सेकंड। हाँ, थोड़ा सा और चलते हैं हार्ट के बारे में, क्योंकि हार्ट के अलग अलग प्रॉब्लम्स है। देखिए, wall of the heart is organized three histological layers: epithelium, myocardium, and हार्ट की जो मसल्स है हमारी बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्ग मसल्स होती है। अब आप देखिए मसल्स की कितनी तेज होती हैं। endocardium, and the entire heart is enclosed by the pericardium. The epicardium forms the outermost layer of the heart wall and is also known as the visceral layer of the serous pericardium. It is composed of a thin lining of simple mesothelial cells supported by connective tissue and varied amounts of fat. This layer is important because it contains the coronary arteries and veins and autonomous the heart. Beneath the muscular middle layer responsible for the pumping action of the heart. It is composed of cardiac muscle cells that are striated, branched, and interconnected by intercalated discs, which provide mechanical strength and allow rapid electrical conduction for coordinated contraction. The thickness of the myocardium varies in different chambers, being greatest in the left ventricle, followed by the right ventricle, and then the atria, reflecting the workload of each chamber. Damage to this layer due to reduced blood supply leads to myocardial infarction. The endocardium forms the innermost smooth lining of the heart chambers and valves. It consists of simple endothelial cells supported by a thin connective tissue layer, the deeper subendocardial layer containing Purkinje fibers, which are part of the cardiac conduction system and help raise the heart rhythm. इस वीडियो में क्या समझे आप? जब कल जो मैंने आपको बताई थी हार्ट संबंधी जितनी भी समस्याएं क्रिएट होती हैं वो क्यों होती हैं उसके बारे में पूरी डिटेल में बताया गया था। और एक चीज और देखते हैं बाईपास सर्जरी के, बाईपास सर्जरी कैसे होती है और उसके बाद में अपनी एजुकेशन का पार्ट को अपन आगे करेंगे ना। तो जस्ट एक सेकंड। हाँ जी, जो बाईपास सर्जरी होती है के अंदर वो क्या करते हैं, शरीर के किसी भी हिस्से से एक्स्ट्रा जो ब्लड सेल्स होती है उसको निकाल के। अब आप देखिएगा, A bypass heart surgery reroutes blood around arteries. यहाँ पे कोई Coronary bypass surgery creates a pathway for blood. Arteries become severely blocked. इस तरीके से काम। During the operation, surgeons take a healthy blood vessel from another part of the body, often the chest, arm, or leg. This vessel is then carefully connected above and below the blocked section of a coronary artery. One end is attached to the aorta, or another major artery carrying oxygen-rich blood. The other end is sewn into the coronary artery beyond blockage. This newly created flow around the obstructed segment. Instead of forcing circulation through a narrow artery, the heart receives oxygen through a completely new vascular pathway. ओके, तो हमने बाईपास सर्जरी भी देख ली, सारी कुछ देख लिया, हार्ट की फंक्शन की प्रॉब्लम को समझे। यानी कल की जो एजुकेशन थी, कल हमने सुना था, आज हमने आंखों से देख लिया, रिवीजन हो गया। अब मैं पीपीटी रेडी कर रहा हूँ। अभी कुछ न्यूट्रिशन है, एक लाइफस्टाइल है, उसमें हम बात करते हैं जिसको किस तरीके से हम समाधान करते हैं। सारी प्रॉब्लम की जड़ है अपना खान पान, अपनी जीवन शैली। खान पान जो हमारे मिलावट हो रही है अपने आप में समस्या है, हमारे अज्ञानता की वजह से हमारे खाने के अंदर, क्योंकि ज्यादातर हम जो चीजें खाते हैं जीभ को प्रायोरिटी पर रख के ही खाते हैं, यानी स्वाद को प्रायोरिटी पर रख के खाते हैं। उसमें ट्रांस फैट बहुत ज्यादा है, सैचुरेट फैट ज्यादा, नमक ज्यादा, चीनी ज्यादा, कार्बोहाइड्रेट, रिफाइनरी कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें यूज कर रहे हैं ना, और वो सारी चीजें जाके बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। और जो बॉडी को चाहिए था प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, जो हमारे खाने में होता ही नहीं है। तो जो चीज हमारी बॉडी की नीड है वो नहीं मिल रहा, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट होती है हमारे साथ चल के ना।
तो इस वजह से बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज होती है और उनमें से हम एक पे बात कर रहे हैं आज हार्ट हेल्थ पे ना, हार्ट कार्डियो न्यूरो प्रॉब्लम्स में। जस्ट मैं एक सेकंड पीपीटी रेडी कर लेता हूँ, पीपीटी स्पेशल। तो आप सभी से तो हम्बल रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप अपनी स्क्रीन का छेड़खानी ना करें ना, छेड़खानी करेंगे तो क्या वो पीपीटी में नाम आ जाता है उनका। जस्ट एक सेकंड, तो मैं पीपीटी रेडी कर रहा हूँ, आपको देखना है, प्रॉब्लम को समझना है और फिर इसको अपन को निजात डालना है अपने आप में। और निजात क्या है, अपनी लाइफस्टाइल को, फूड हैबिट को करेक्ट करना, क्या सही है क्या गलत है इसको समझना। रमेश सर मुझे कंफर्म करेंगे कि मुझे पीपीटी नजर आ रही है? थैंक यू सर, थैंक यू। तो हम समझते हैं ये मोटापा वाला इंसान का शरीर है ना, चर्बी किस तरीके से बॉडी में जम जाती है। जो हमारी स्किन की जो तीसरी लेयर होती है उसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट, ठीक है, जो हमारी बॉडी को शेप देती है, बॉडी को प्रोटेक्ट करने काम करती है, ऑर्गन्स को हेल्प करती है, वेंटिलेशन का काम करती है, रिजर्व एनर्जी का भंडार है, बहुत सारा काम होता है। ये जरूरी है हमारे लिए, लेकिन कितना जरूरी है? मेल के लिए 10 से 20% और फीमेल के लिए 20 से 25% ही होना चाहिए। उससे ज्यादा क्वांटिटी में हम लेके चल रहे हैं तो जो मान के चलो अच्छी खासी बीमारी पालने वाले आगे चल के ना, तो इसको ज्यादा नहीं बढ़ाना अपन को। अब आगे समझते हैं डिटेल भाई, प्रॉब्लम कैसे होती है। बढ़ा हुआ वेट सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है, वो कैसे होती है। अब आप ये समझते हैं, यहाँ पे देखो ऊपर फ्लायर में दिख रहे हैं यहाँ पे जो फर्स्ट इसमें ये बहुत ज्यादा ओवरबर्ड लोग है, उसका जो एक्सरे कराया गया, इनकी बोन्स नजर ही नहीं आ रही, बॉडी में 40% बॉडी फैट है, ठीक है, बहुत ज्यादा बॉडी फैट है। अब सेकंड वाली डिजीज में देख रहे हो आप, या हेल्दी हार्ट नजर आ रहा है आपको। मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ, आप देखोगे ये हेल्दी हार्ट है, एक स्वस्थ हार्ट कह सकते हैं हम इसको। ये हमारी ब्लड वेसल्स बहुत हेल्दी है, परफेक्ट है, कोई प्लाग नहीं जम रहा किसी भी तरीके का। ये उन लोगों का होता है जो हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को जीते हैं, अच्छा खाना पीना करते हैं, ठीक है, तो उनका हार्ट इस तरीके से परफेक्ट काम करता है, कभी लाइफ में कार्डियो न्यूरो प्रॉब्लम नहीं होती। जो लोग स्मोकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ट्रांसफैट बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, रिफाइनरी ऑयल बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, नमक चीनी और मिठाइयां, है ना, यानी कि जीभ के स्वाद पूरा करने के लिए खा रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवरवेट लोग हो रहे हैं। टम्मी फैट बहुत ज्यादा है, जिनका विस्लर फैट 11 से ज्यादा है, टम्मी वाला फैट 11 से ज्यादा है, उन लोगों के साथ में प्रॉब्लम्स होती है। तो यहाँ पे हार्ट देखोगे, हार्ट की जो संरचना भी डिस्टर्ब होने लग गई है, वेट भी बढ़ने लग गया, हार्ट के चारों तरफ जो है विस्लर फैट की लेयर बनने लग गई है, और हमारी आर्टरी जो होती है, हमारी खून की जो नलियां होती है, इनके अंदर भी प्लाग जमने लग गया, यानी नसें जो है अंदर से सिकुड़ने लग गई, नैरन होने लग गई है। तो ये सारी चीजें क्यों होती है? क्योंकि हमारा जब वेट बढ़ता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है ना। लिवर के बारे में आज बात नहीं करेंगे, लेकिन हमारे हर एक ऑर्गन्स पे बेली फैट जब बढ़ता है तो हर एक ऑर्गन्स को प्रभावित करता है। लेकिन आज हम सिर्फ हार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ये कि नलों के अंदर इस तरीके से प्लाग जम जाता है। आप देख रहे हैं ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हमारे ब्लड सेल्स ऑक्सीजन कैरी करें, अभी अवरोध पैदा हो गया, आगे जाएंगे तो हमारे क्या होगा, सेल्स मरने लगती है, डैमेज होने लगती है, और यही प्रॉब्लम क्रिएट होती है कार्डियो न्यूरो प्रॉब्लम की। अगर क्लोट होता है वो हो गया तो हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक हो गया, और अगर क्लोट ब्रेन हेमरेज हो गया, दोनों कंडीशन में इंसान की मौत हो जाती है। तो बेसिक प्रॉब्लम ये होती है हमारी, जो इनर जो प्रॉब्लम आती है, अभी क्यों आती है, हमारा कोलेस्ट्रॉल का असंतुलन क्यों होता है, जैसे हम क्या खा रहे हैं, आपको ये जानना बहुत जरूरी है और करना बहुत जरूरी है ताकि सारी चीजों से बच सके। अब हम क्या कर रहे हैं आज की तारीख में, अगर में ये प्रॉब्लम हो रही है, बीपी की मेडिसिन खाए जा रहे हैं, शुगर की मेडिसिन खाए जा रहे हैं, बेस्ट उसको क्यों इस बात काम नहीं करते, काम नहीं करते, वैसे अपनी जीवन शैली में वो सारी चीजें है, और ये प्रॉब्लम जिंदगी भर हो जाती है। तो यहाँ पे देखते हैं एक स्वस्थ हो गया और एक यहाँ पे हार्ट पे वजह से वैली फैट बढ़ते हैं। तो कैसे हमारे हार्ट जो होता है, मतलब मोटापा जो होता है, हमारी जिंदगी पे किस तरह से ग्रहण लगाता है समझने की कोशिश करते हैं। अब दुनिया भर में हार्ट अटैक हमले हो रहे हैं, हर भारत के अंदर 5 आदमी जो की हो रही है वो हार्ट अटैक की वजह से हो रही है, जो बहुत बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हैं। और पूरे वर्ल्ड में हार्ट अटैक डायबिटीज हो गया, इंडिया हम सेकंड रैंक पे है ना। ये हमारा ओरिजिनल हार्ट अटैक आप देख रहे हो, इसके ऊपर ये चर्बी है ना, इसको बोलते हैं विस्लर फैट। अब आप ब्लैक जो नजर आ रही है ना, ये कोरोनरी आर्टरीज है, ये पूरी तरह ब्लॉक हो चुकी है, नैरो हो चुकी है, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया, ये हार्ट फेल हो गया इनका। तो ये ओरिजिनल पिक की फोटो है। अब आप देखोगे पूरी बैक हो रही है, विस्लर फैट जब हार्ट के ऊपर जमता है, किसी ऑर्गन के ऊपर जमता है, उसकी कार्य क्षमताओं को कम करता है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन करता है, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, और ये मेजर कारण होता है। तो हमें अपने ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट
का काम करता है। ठीक है, तो विस्लर फैट देखो इधर हेल्दी हार्ट है, ये पूरा विस्लर फैट हुआ है, तो ये इनका 11 से 10 है, अलर्ट होने की जरूरत है। इसको नॉर्मली 3 से 6 किलोमीटर तक लेके आना है, ये हमारी प्रायोरिटी है ना। आप हेल्दी हो गए, चल लगता है कि लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो इसको कम करना है। जो बहुत ज्यादा विस्लर लेके चल रहे हो आप, यहाँ पे देखिए ये हाथ जो कॉर्नरी आर्टरी होती है, इस तरीके की ये हेल्दी आर्टरी है हमारी, और ब्लॉकेज आर्टरी जो होती है, जब ब्लॉकेज आर्टरी होती है तो ये ब्लड क्लॉट बन गया इससे, और ये कारण हो जाता है कि आगे इनको ऑक्सीजन मिल पाता, ये हार्ट पूरे पंप करता है। और ये लाल लाल सी जो देख रहे हैं ना आर्टरी, ये हार्ट को ब्लड दे रही है। हार्ट को जिंदा रखने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए और पोषण चाहिए। हार्ट को जिंदा रखने वाली जो उनकी नलियां हैं और ये आर्टरी, अगर उन्हीं के अंदर ब्लॉकेज हो गया तो हार्ट को ऑक्सीजन मिलेगा, पोषण मिलेगा, हार्ट अटैक आएगा, बंदा ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये हार्ट की अंदर की संरचना है। जैसे कल बताया मैंने आपको 4 वाल्व होते हैं हार्ट के अंदर, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, ये 4 चैम्बर का अलग अलग काम होते हैं। ऊपर के वाल्व हो गए, ठीक है, लेफ्ट एट्रिकम हो गया और ये राइट एट्रिकम हो गया। इसका ये जो हो गया राइट एट्रिकम हो गए और लेफ्ट एट्रिकम हो गए, इनका अलग अलग काम होता है। यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन को ब्लड को भेजना, और यहाँ पे देख रहे हो जो रेड वाला जो है, रेड आ रही है, ये ऑक्सीजन है, इसके माध्यम से कैरी करता है। और जो नीला वाला है वो ऑक्सीजन है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, पूरी बॉडी को पंपिंग करने का काम करता है। जब दिख रही है ये जो धक धक अपना ये आती है इनकी वजह से, ये वाल्व होते हैं हमारे, धक धक आवाज आती है हार्ट की, वो इनकी वजह से आती है। अब समझते हैं चीज को दोबारा देखिए, यहाँ पे पूरा प्लाक जम गया और ये क्लोट जम जाता है हार्ट के अंदर और ये आर्टरीज के अंदर। अब ये क्लोट जम गया, क्या हो गया कि हार्ट नहीं मिला। जब उसकी कंडीशन में हम सीपीआर देते हैं ना, तो क्लोट दाएं बाएं खिसक जाता है। इसलिए हमेशा याद रखो सीपीआर आपको देना आना चाहिए। अगर हार्ट अटैक के सिम्टम्स सामने वाले को नजर आ रहे हैं तो उसको हार्ट अटैक आने से पहले बॉडी के अंदर जो होते हैं, जैसे सिर दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ होना, आप एनवायरमेंट में फिर भी आपका जो है सांस लेने में दिक्कत है, जी मचलता है, उल्टी जैसा मन करता है, आपस की प्रॉब्लम हो सकती है ना, पेट में दर्द होता है, पसीना जिसमें ठंडा पसीना आता है, ठीक है, पेट दर्द होना, ये सब कुछ सिम्टम्स होते हैं। सबके अलग हो सकते हैं, मेल के अलग होते हैं, फीमेल में सिम्टम्स होते हैं। सीपीआर देते हैं हम हार्ट के ऊपर, दोनों हथेली पे दबाव बना के इस हफ्ते से 100 से लेकर 120 मिनट के हिसाब से उनको, मतलब 1 मिनट में 100 से लेकर 120। उससे क्या होगा, तो वाइब्रेशन जो हमारी हार्ट के अंदर जो होती है वो एक्टिव होती है, जो जमता है ये वाला ये दाएं बाएं ठीक। ऐसे ही मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था, मोटरसाइकिल जाते हैं कि फुल तो मैनुअल चलती है, तो टैंक का ऑयल खत्म, पेट्रोल खत्म होने लग जाता है, जो रिजर्व है तो झट से बंद होने के कारण तुरंत उसको रिजर्व नहीं किया, यानी कि रिजर्व पेट्रोल था तो मोटरसाइकिल बंद हो जाएगी। वैसे ही था, अगर आपने सीपीआर देखी फ्लो को नहीं आया तो तुरंत धंधा खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो जो सीपीआर जो होता है ना, एक तरीके से रिजर्व का काम करता है, इसको दाएं बाएं करता है। डॉक्टर क्या करते हैं, हमारे पैर की से हाथ इस तरीके से देखो नहीं ये बॉडी में डाल दे, और जो आर्टरीज के अंदर जो आर्टरी ब्लॉकेज थी वहां देखें कि ये देखो इसकी वजह से ब्लड क्लॉट जो है ना यहाँ जम गया, ब्लड आगे नहीं जा रहा था। तो इस में वैल्यू गुब्बारे के ऊपर जो इसमें क्या था था वो डाल दिया, और डालने के बाद वो खुल गई, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने लग गया, और बाद में वो नली वापस निकाल लिया। ये होती है हमारे स्टंट डालने की। से होता है यहाँ पे देखिए ये स्टंट डाल दिया, अब अपना ब्लड ठीक हो गया। और ये जो देख रहे हो ना, यार ये व्हाइट व्हाइट सा हमारे ब्लड में जो जांच करते हैं लोग, इसकी ये कुछ केमिकल है, नाम मेरी याद नहीं है, बॉडी के अंदर उससे फिर जो है तो उसे पता चलता है कि हमारी वो प्रॉपर बॉडी में पार हो रहा है नहीं हो रहा, उससे पता चलता ब्लॉकेज है। तो यहाँ पर कह रहे हैं ब्लॉकेज हो गया क्योंकि, लेकिन ये सिर्फ आपके लाइफ को सर्वाइव का एक माध्यम बन सकता है, यानी बॉडी लाइफ और बढ़ सकती है।
ये कि स्टंट डल गए हो गए तो बस नहीं, आप जब तक अपनी लाइफस्टाइल काम नहीं करोगे तो नहीं। ऐसी नौबत आए, आप इसको ऐसी नौबत किस लिए आए, हम पहले से अपने आप को प्रोटेक्ट रखें और होंगी, बहुत सारा पैसा लग रहा है, जान का जोखिम है, और आप इंसानों का आने वाले अपने परिवार की, तो आपको थोड़ा सा अपने मिलते हैं। आगे चलते हैं। दूसरी मेजर प्रॉब्लम क्या होती है, वेरिकोज वेन की दिक्कत। वेरिकोज वेन को समझते हैं, हमारे बॉडी में दो पार्ट है, दो बिल्कुल आगे होता है, लेकिन हमारी पीडीएफ के अंदर होती है ना, इसको सेकंड हार्ट बोल सकते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जो है ना ब्लड को ऊपर फ्लो करता है, ठीक है। अब हमारी आदतें होती है जिनकी वजह, जैसे कि एज का पड़ाव, एज का क्या होता है, तो प्रोटीन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा, और हम ये पता चलता है कि प्रोटीन से मिलकर बनती है, तो ब्लड स्लो होने लगती है। क्या होता है कि प्रेगनेंसी में भी जो बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, मोटापा है तो उनके लिए बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, बहुत ज्यादा लोगों को ना टाइम तक खड़े रहना होता है, तो ये सारी चीजें होती है जो उनके साथ में भी प्रॉब्लम्स होती है। क्या है कि हमारी जो वेन्स होती है ये वीक होने लगती है, और यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो काफ मसल्स है जिसमें ये देखो बाल्ब लगे हुए हैं, वो सेकंड हार्ट, तो ये नीचे का ब्लड को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत फ्लो करता है। भाई एक चीज को नीचे अपने आप आएगी कि सेकंड हार्ट है हमारा, यानी कि जो पिंडी के अंदर हमारा मस होता है, फ्लो नीचे ऊपर प्रॉब्लम कब आती है, जब हमारी ये जो हमारी ब्लड होती है होने लग जाती है, वाल्व जो डैमेज होने लग जाते हैं, तब जाके प्रॉब्लम, हमारी नसें जो होती है ना इस तरीके से लगती है। अब क्या लक्षण बढ़ जाती है, टेढ़ी-मेढ़ी दिखाई देने लग जाती है, इसमें हो जाती है, पेटी के अंदर वो दिक्कत होती है। आप में से बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, सारी दिक्कतें होती हैं इनमें। वेरिकोज वेन समझते हैं, ये हमारे काफ मसल्स है, ठीक है। यहाँ पे हेल्दी काफ मसल्स है, ये वाल्व पे है, ये नीचे का ब्लड ऊपर फ्लो करने का काम करते हैं, फ्लो को रोकते हैं, जैसे हार्ट के अंदर होते हैं ना, ठीक वैसे ही यहाँ पे होते हैं। कि जब होते हैं तो क्या होता है, इस तरीके से नीली नसें बढ़ने लगती है, का कारण बहुत सारे फैक्टर है, ओवरवेट, मोटापा है, यहाँ पे काफी सारे लोग देखी होगी, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से होती है, यहाँ पे देखो ये पूरी हो गई है, हो जाती है, और ये ब्लड का क्लॉट जमने लग जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बाधित हो जाता है और नसें दर्द होने लग जाती है ना। ये पूरे दिन में एटम दिखाई देती है, नसों के आसपास सूजन हो जाती है, चिड़चिड़ापन, जैसे बिजली से करंट होता है ना, उस तरीके की जलन होगी अब इसके अंदर, पैर में बहुत भारी महसूस पड़ता है इसमें। ये सारे कुछ सिम्टम्स के इसमें कम तक हो जाते हैं, बोलते हैं वीनस अल्सर बोलते हैं, बहुत ज्यादा लोगों को ज्यादा दिक्कत हो जाती है, एक तरीके से घाव भी नहीं भरते लंबे समय में, है ना। तो मेजर प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे देखोगे सारी वेरिकोज वेन प्रॉब्लम्स है, काफी सारे लोगों को देखने को मिलती है चीजें, लेकिन रूट क्या थी, उसका कोई काम नहीं करता, वेरिकोज वेन हो गया थी, अब इसके ट्रीटमेंट, लेकिन बीमारी के पीछे का कारण क्या था, बीमारी हुई क्यों शरीर में, इसमें कोई काम नहीं करा। जब तक आप अपने लाइफस्टाइल पर बदलाव नहीं करते, खान पान में काम नहीं करते, तो मेडिसिन अच्छे से काम करती, जिंदगी में खान पड़ती है, और जिंदगी जीनी है तो खाना करेंगे। अगली प्रॉब्लम है माइग्रेन। माइग्रेन देखो सबसे ज्यादा मेल की तुलना में फीमेल में माइग्रेन होता है, क्यों होता है, पहले इसको ये समझते हैं। माइग्रेन के बहुत समझ लेते हैं, जब ज्यादा स्ट्रेस, ठीक है, तनाव बहुत हर किसी की लाइफ में है, लेकिन क्रोनिकल स्टेज लाइफ में चल रहा है, स्ट्रेस चल रहा है, माइग्रेन बहुत सारी डिजीज उनके करने काम करते हैं, ठीक है, बार-बार देवी, ये अपने स्वास्थ्य का खिलवाड़ है, गट हेल्थ की बैंड बजा रहे हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं,
और उनको माइग्रेन होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये नहीं करना, खाली ज्यादा लंबे जो लोग कॉफी का करते हैं लंबे समय तो उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और माइग्रेन ट्रिगर होने का काम करता है। पेशाब हो गया, धूम्रपान हो गया, बहुत ज्यादा तेज धूप में बैठना, तेज आवाज की वजह से है ना, मोबाइल स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा होना, चिड़चिड़ापन अपना, जो हार्मोन बैलेंस होना, ठीक है, तो वजह से डिहाइड्रेट हो जाती है, इसकी वजह से भी हमारी प्रॉब्लम हो जाती है और चीजें बनता है माइग्रेन। आगे चलते हैं माइग्रेन को समझने के लिए। बहुत सारी चीजें ट्रिगर करती है हमारे को। सबसे पहले हमारी पोल्यूशन, ये सारी चीजें होती है। माइग्रेन होगा क्या है उसको थोड़ा समझ। माइग्रेन में से दर्द होता है, दर्द हो जाता है। अब देखते हैं ब्रेन की नसें हैं, न्यूरॉन हैं, फ्लो होता है सामने है, यहाँ पे देखते हैं थोड़ी नोरा होने लगी, करने लग गई, तो जो ब्रेन तक प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा। तो माइग्रेन को दो तरीके से होता है। एक तो होता है न्यूरो प्रॉब्लम, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, प्रॉपर पोषण नहीं पहुंचता, दिमाग हैंगओवर हो जाता है। बहुत सारे फैक्टर है इसके जो ऑलरेडी बता चुका हूं, और दिमाग में ऐसे नहीं दर्द होता है। दूसरा अगर हमारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, गैस बहुत ज्यादा ऐसे महसूस करता है, उसकी वजह तो सिर्फ सिम्पटम्स को समझ और उन दोनों का मेंटेन उस तरीके जो सपोर्टिव न्यूट्रिशन डाइट अलग अलग हो वो ये मेजर हमारे न्यूरो प्रॉब्लम माइग्रेन में दो तीन लोगों के साथ में। इसके अलावा स्ट्रोक प्रॉब्लम है आज की तारीख में। हार्ट जो है ब्लॉकेज जो होता है हार्ट में तो हार्ट अटैक आ गया, और ब्रेन में हो गया तो ब्रेन स्ट्रोक हो गया। अब देखते हैं ये ब्रेन स्ट्रोक की वजह से पूरा यहाँ पे ब्लड फैल गया, ये पूरा ब्रेन जो है, और ब्लड फैलने की वजह से सारी चीजें हो जाती है। अब होता क्या है कि हमारी हेल्दी ब्लड होती है, पूरे ब्रेन को ऑक्सीजन और पोषण सप्लाई करे, लेकिन हमारी नसों के अंदर जो प्लाक जमने की वजह से, ये प्लाक पूरा प्लाक जमने की वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बाधित हो गया और एक क्लोट जम गया। क्लोट अगर हार्ट में जम गया तो हार्ट अटैक, ब्रेन तो आपका ब्रेन हेमरेज हो गया, या फिर आपका पैरालिसिस हो गया, है ना, कोई तरीके कोई ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बाधित हो गया, अपना लक्ष्यग्रस्त हो गया शरीर जो है ना। तो ये मेजर होती है हमारी कार्डियो प्रॉब्लम। फैक्टर एक ही है, खान-पान, जीवन शैली, हम क्या खा रहे हैं और कैसा जी है, उसका परिणाम निकल आया, बहुत सारी बीमारियां हमारे साथ लग गई। खान-पान, जीवन शैली, जो बीमारी की रूट थी उस पर काम करेंगे तो परिणाम निकल के आएगा, आपकी बॉडी करने लगेगी, वो चीज जो है आपकी बॉडी बीमारी जाने से पहले काम करना, ठीक है। यहाँ देखते हैं जो डायबिटीज और पेशेंट को कार्डियो प्रॉब्लम क्यों बढ़ता है, यहाँ पे देखते हैं हम तरीके से, और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पर जो हाई बीपी बढ़ जाता है, तो इस तरीके से हमें जो नशे हो गया ये वो तरीके से ये देखो, और इधर देखो डायबिटीज हो जाता है, तो ब्लड के अंदर डायबिटीज है, ये जो ब्लड के माध्यम से जो ऑक्सीजन हमारे नर्वस सिस्टम जो संकेत देने का काम करते हैं, ये पूरी तरह में हो जाते हैं। तो यानी कि बीपी है तो डेफिनेटली स्ट्रोक का, हार्ट का, किडनी का, है ना, ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम करते हैं। तो इससे में बच के रहना, डायबिटीज और बीपी को कंट्रोल करके रखना, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को ट्रिगर करती है। एक और प्रॉब्लम हो रही है अस्थमा। अस्थमा क्यों है, इस पर नेक्स्ट जाऊंगा, लेकिन आपको यहाँ पे देखोगे शरीर के अंदर खून जो होता है, हमारा ब्लड जो होता है, वो बहुत सारी चीजों को देता है। अगर आपके इसका मतलब क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन बाधित हो गया, हम कहते हैं ना खून गाढ़ा हो गया, हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा हो गया। इसका मतलब दो कारण होते हैं, खून गाढ़ा और दूसरा प्लाक जमने लग जाता है, रास्ता सकड़ा हो गया भाई। इस वजह से हाथ पैर झुंझुना सुन रहते हैं, है ना, चीटियां बैठ गए थोड़ी देर में तो आदत मुक्ता दे के जाते हैं उसको। इसका मतलब ठीक नहीं है, चक्कर आ रहे हैं आपको, इसका मतलब दिमाग तक ठीक से ब्लड नहीं पहुंच रहा, इसका मतलब आपकी नसें जो प्रॉपर तरीके से जो लग रहा है, ब्लॉकेज होने लग रहे हैं, चक्कर वगैरह आने लग रहे हैं। तो दूसरा अगर आपकी जो स्किन नीली पड़ने लग रही है, इसका मतलब ऑक्सीजन का कम होने लग जाता है, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी जो है नीली पड़ने लग जाती है।
आ जाती है ना, बार बार जो नाक खून आता है तो खून बहुत ज्यादा पतला होने लगे, यानी प्लेटलेट बहुत ज्यादा डाउन चलेगी बॉडी के अंदर, और जो है और हिट मारती है बॉडी, गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है उन लोगों को समय होती है चीज। और जो लोगों की इम्यूनिटी वीक होता है, ये बहुत ज्यादा अंडरवेट होते हैं, प्रोग्राम नहीं होता है। पैरों में सूजन आ रही है तो नसों के अंदर ब्लॉकेज बनने लगे, चेस्ट पे भारीपन होने लग रहा है, यानी कि हमारे जो है सिम्टम्स है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारे लंग्स से सभी दिख रहे हैं, और ये हमारे जो लंग्स से फेफड़ों जो नसें इनर नसें होती है, आप समझते हैं ना अस्थमा, ये सामने लंग्स इस तरीके की होते हैं, हमारे को यहाँ ऑक्सीजन लेने की जो नसें होती है, सांस लेने की जो नसें होती है बिल्कुल खुली हुई है। अब वास्तव में क्या होता है कि इंफ्लेमेशन क्रिएट होता है, ठीक है। इंफ्लेमेशन क्रिएट होने की वजह से सबसे पहले एलर्जेटिक रहती है, एलर्जी रहती है किसी चीज से, किसी डस्ट से, किसी तरीके से। तो होता क्या है कि हमारी सामान्य जो शरीर के अंदर जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, थोड़ी सामान्य चीज को समझते हुए वो दुश्मन की तरह ट्रीट करती है, और वो इंफ्लेमेशन जाती है और लंबे समय तक चीज रहती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि अस्थमा में कन्वर्ट हो जाती है, तो सांस की नली है अंदर से नैरो होने लग जाती है। और ये जो देख रहे हैं ना चिपचिपा पदार्थ सा, ये जो कप नहीं निकलता अपने गले से, कप निकलता है, वो कप होता है यार, इस तरीके से होती है। जो सांस लेने की वायु मार्ग जो आपके कम होने लग गए, तो डेफिनेटली जो है ना दम सब उठेगा, पंप लेना पड़ता